Well, okay, so we will start electromagnetism. Basically, we will start electromagnetism. Book followed. Okay, tell me, book followed is Irodov and B.M. Sharma and Gate Physics. Gate Physics is for MSc student. Okay, so these two books I think good for IIT Advanced. IIT Advanced. Okay, so we need more concept for Irodov. We will develop the basic concept so that we can solve Irodov. And for Gate Physics, we need the mathematical counterparts. Some good mathematics background. You should know Poisson's equations. Okay, Legendre's polynomial. Divergence, curl, and gradient. If you have basic idea of all these things, then you can understand whole electromagnetism. Basically, we will divide electromagnetism between two sections, that is electrostatics plus magnetostatic and plus electromagnetic radiation. Well, so we will study all these things in different sections, right? Let us study first electrostats. Okay. Electrostatics. Well, in electrostatics we are just going to study about electric field. Okay, and source is charge, and we will see electric field depends upon the charge distribution, actually, how the charge is distributed. We will see how this charge is distributed over the space. Then we can find the electric field in a function of a space coordinate only, not with the time. Okay, only a space coordinate. Now electric field will interact with material. And how electric field responds to the material, there will be some other lectures on this topic. First, the basic thing, we will start with some basic. Okay, sorry, in Hindi I should speak. हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं. दिस इंटरेक्शन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन पोलराइजेशन. ओके, ये मटेरियल पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड का जब इंटरेक्शन होगा तो मटेरियल में होगा पोलराइजेशंस. पोलराइजेशंस का मतलब क्या होता है? पोलराइजेशंस का मतलब होता है डायपोल क्रिएशन. डायपोल यहाँ पे क्रिएट होगा, और डायपोल का मतलब होता है टू चार्जेस, जैसे प्लस है माइनस है, सेम मैग्नीट्यूड का एक सेपरेशन हो जाएगा. देखेंगे क्या, और ये सेपरेशन जब हो गया, इसी को बोलते हैं कि कोई मटेरियल पोलराइज्ड हो गया. और ये चार्ज
का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्योंकि हमारे मटेरियल्स जो है इसमें दो तरह के चार्ज होते हैं। ये चार्ज होगा, इसे बॉन्ड चार्ज कहेंगे, बॉन्ड चार्ज। और दो तरह के चार्जेस होंगे मटेरियल में, एक बॉन्ड चार्ज होगा, एक फ्री चार्ज होगा। देखेंगे फ्री चार्ज किसे कहते हैं, बॉन्ड चार्ज किसे कहते हैं। तो जब मटेरियल पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड का रिस्पॉन्स होगा तो ये सारा चीज हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये सब क्या है, पोलराइजेशन वेक्टर क्या है, दिस इज एक्चुअली वेक्टर। तो पोलराइजेशन वेक्टर क्या है, फ्री चार्ज क्या है, एंड यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ओके। मटेरियल का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इसका क्या है, and we will discuss the electrical property of material through one property, that is permittivity, that is electrical constant, right? So first we will understand what's little bit about charge, then we will find out how it produces the electric field and its material interactions. Okay, it is going to be quite interesting. But okay, so first we will start about we will try to find the nature of the charge. Okay, what is ink? Okay, just some 2 moment. Okay, so let us start to understand about charge. Okay, we have just discussed earlier that charge distribution. First start with a very primitive idea about point charge. Point charge, I can say free point charge. Okay, what this by mean, it's free, and one may be, ये यदि फ्री है तो हम इसे क्लासिकल पार्टिकल्स की तरह यूज करेंगे, क्लासिकल पार्टिकल्स। अब देखेंगे है क्या, यदि ये पॉइंट चार्जेस जो है, जैसे आप गेस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, सपोज हम एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं जो जिसके पास चार्ज होता है। चार्ज जो हम लोग जानते हैं 9-10 से पढ़ते हैं, जिसके हर मैटर के पास चार्ज होता है, पर हम लोग थोड़ा सा ज्यादा स्टडी करना चाहते हैं तो ये सब स्किप करना चाहते हैं बेसिक्स, इसे नेचर, प्लस माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। सो जो 8, 9, 10 हम एक्सपेरिमेंटल जो एविडेंस था कि क्या होता है, मिलकर इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज को हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो सब अभी हम लोग स्किप कर देना चाहिए। आई थिंक वी शुड गो अहेड। सो वी हैव पॉइंट चार्ज विच इज फ्री, देन वी कैन कॉल इट एज क्लासिकल पार्टिकल्स। ओके, यदि क्लासिकल पार्टिकल्स है तो इसका मीनिंग है कुछ। ओके, इसका कुछ फिजिकल मीनिंग है, हम लोग देखेंगे। सेकेंड इज बॉन्ड चार्जेस, बॉन्ड चार्ज, and this is actually quantum mechanical particle, quantum mechanical particle. Okay, quantum mechanical particles जो है कहाँ पे हमको मिलेगा। जैसे आप सपोज ये क्रिस्टल है, ये क्या है, क्रिस्टल है। यदि क्रिस्टल में, ये क्रिस्टल है, ओके, यदि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन है तो हम कह सकते हैं, इस मॉडलिंग जब करेंगे, इसका स्टडी करेंगे जब हम क्रिस्टल के बारे में, तो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है कुछ स्मॉल स्पेस में कन्फाइंड है,
it is confined in a space, then its character will be changes, then ये वेव की तरह काम वर्क करना शुरू कर देगा, इट विल एक्ट लाइक ए वेव। ओके, जो इसका एनर्जी होगा वो वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। हम लोग देखेंगे वेवलेंथ के टर्म में, हम सॉरी नॉट प्रोपोर्शनल, हम लोग कह सकते हैं इसका एनर्जी को हम वेवलेंथ के टर्म में हम लोग देखेंगे कि वेवलेंथ से कैसे इसका एनर्जी रिलेटेड है, कैसे संबंधित है वेवलेंथ से। क्योंकि यहाँ वेव की तरह वर्क करेगा तो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव फॉर्म कर सकता है, ये स्टैंडिंग वेव फॉर्म करेगा। तो एनर्जी होगा वो वेव का जो एनर्जी होगा वो एनर्जी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सेम यदि पार्टिकल्स एटम में भी हो सकता है तो वो भी इसका जो एनर्जी है वो वेव के कारण ही रहेगा। ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से रोटेट हो रहा होता है। तो यहाँ पार्टिकल की तरह हम इसे नहीं देखेंगे, इसे हम एक वेव की तरह देखेंगे। और ये देखिए ये कन्फाइंड है, इस ऑर्बिट में कन्फाइंड है, इसी ऑर्बिट के अलॉन्ग मूव करेगा। तो इसका जो एनर्जी होगा इसे हम वेव की तरह ट्रीट करेंगे। और वेव का जो एनर्जी होगा वेवलेंथ के से टर्म में लिखना चाहेंगे हम लोग। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसका एनर्जी क्या होता है, पर इसे आगे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मॉडलिंग करते हैं कि इसका एनर्जी क्वांटिटाइज हो गया तो हम लोग बोलेंगे इसका एनर्जी क्या हो गया, क्वांटिटाइज हो गया। क्वांटिटाइज मतलब डिस्क्रीट, मतलब डिस्क्रीट वैल्यू है। जैसे पैसा, जैसे 10 रुपया हो सकता है, 20 रुपया हो सकता है, 30 रुपया हो सकता है, 11 रुपया नहीं होता है, 12 रुपया नहीं होता है, 15 रुपया नहीं होता है। तो एक इसका फिक्स वैल्यू है। इसे डिस्क्रीट मतलब क्या हो गया आप समझ सकते हैं, इसे लैडर है। तो इसका एनर्जी यहाँ पे हो सकता है, आप यहाँ पे रह सकते हैं, आप यहाँ पे रह सकते हैं, आप यहाँ पे रह सकते हैं, एनर्जी आपका कुछ और होगा, यहाँ पे रह सकते हैं कुछ और एनर्जी और होगा, यहाँ पे आपका कुछ एनर्जी होगा। कह सकते हैं कि इस एनर्जी डिस्क्रीट है, यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E2 है, यहाँ पे E3 है। ओके, तो इस बीच में कोई एनर्जी नहीं होगा। तो जिसको इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे होगा इस तरह इसका एनर्जी क्या होगा, डिस्क्रीट होगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर क्वांटम फिजिक्स में पढ़ना है। पर आईटी एडवांस में कुछ प्रॉब्लम्स है जो इसी को मॉडल करके दिया गया है। पर ये आप जरूर पढ़िएगा, एटम में इसका एनर्जी क्वांटाइज होगा, इसका वेव कैरेक्टर हम लोग देखेंगे। और इसका जब मॉडर्न फिजिक्स में करेंगे तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर कैसे चेंज हो गया। तो हम फ्री पार्टिकल्स पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका एनर्जी होगा वो ऐसा नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे एनर्जी क्वांटिटाइज होगा, पर जब हम फ्री चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे एक रस्सी है, आप यहाँ पे हो सकते हैं, 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 यहाँ पे हो सकते हैं। तो आपका एनर्जी क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन सीढ़ी पे क्या हो सकता है, आप यहाँ पे हो सकते हैं, आप यहाँ पे हो सकते हैं, आप यहाँ पे हो सकते हैं। पर रस्सी पे आप कहीं भी हो सकते हैं। तो आप mgh एनर्जी इसका मेजर कर सकते हैं यदि आप कुछ रेफरेंस यहाँ से कुछ हाइट पे हैं। लेकिन यहाँ पे आप एनर्जी mgh1 यहाँ से हो सकता है, इस हाइट h1 हम मेजर करते हैं। तो ये हाइट यदि h2 मेजर करते हैं तो आपका हाइट यहाँ पे mh2 है। मतलब एनर्जी बीच में नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस एनर्जी है। एनर्जी क्या है, कंटिन्यूअस है। तो लोग देख सकते हैं सेम चार्ज है। जब ये बॉन्डेड था, जब क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था तो एनर्जी उसका डिस्क्रीट हो गया था। हम लोग देखेंगे क्रिस्टल्स में उसकी एनर्जी क्या होता है। एटम में तो जरूर पढ़ेंगे, हम लोग 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ेंगे, एटम में उसकी एनर्जी क्वांटिटाइज होता है। पर जब हम फ्री चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग समझ सकते हैं इसका कैरेक्टर क्या होगा। यदि हम फ्री चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि इसका जो एनर्जी है इज कंटिन्यूअस। ओके, इसका एनर्जी जो होगा कंटिन्यूअस एनर्जी होगा। इसके पास कुछ भी एनर्जी हो सकता है, डिस्क्रीट नहीं होगा। ओके,
देखिए यदि ये इसका फोटोन के साथ जो इंटरेक्शन होगा, फोटोन इंटरेक्शन इज नॉट कंसीडर्ड। जो फ्री चार्ज जब रखे हुए तो मान लेते हैं इसका फोटोन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन जब एटम होगा, क्रिस्टल में होगा, तो हम देखेंगे उसका ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, पर ये जो फ्री चार्ज है ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। हम लोग देखेंगे कॉम्पटन इफेक्ट, जहां पे लाइट के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है, चार्ज पार्टिकल जब रखा होता है तुम देख सकते हैं। पर ये फ्री जो हम पॉइंट चार्ज है, इसे हम ये बताना चाह रहे हैं कि क्लासिकल पार्टिकल्स और मैकेनिकल क्वांटम पार्टिकल में व्हाट इज डिफरेंस। यदि हम इसे क्लासिकल पार्टिकल कंसीडर करते हैं, क्लासिकल पार्टिकल्स कंसीडर करते हैं, तो मेरा मोटिव था ये जानना कि इसे हम न्यूटन्स मैकेनिक्स अप्लाई कर सकते हैं। वेल, न्यूटन्स मैकेनिक्स जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अप्लाई कर सकते हैं, जैसे F बराबर m है। बस हमारा जानना यही जरूर, बस मेरा पर्पस था वो बताना कि यहाँ पे हम लोग F बराबर m क्यों अप्लाई करते हैं, और जब क्रिस्टल में रहेगा तो क्या F बराबर m होगा। यदि मान लिया जाए ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, ओके, में इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, क्रिस्टल। मान लेते हैं सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर से सिलिकॉन, ओके। तो क्या यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है हम फोर्स लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंपोज करेंगे तो इसमें फोर्स लगेगा निश्चित। क्या जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या इस पे फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा, क्या इसका मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होगा, इसका मोशन, जैसे इलेक्ट्रॉन है इसमें हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, क्या मोशन उसी डायरेक्शन में होगा, नहीं, जरूरी नहीं उस डायरेक्शन में हो, ये बैक में भी हो सकता है, ओके। लेकिन क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल्स है, लेकिन हम क्लासिकल पार्टिकल कंसीडर करते हैं, जो हम बेसिक डिफरेंसेस देख चुके हैं, किसे क्वांटम पार्टिकल कहेंगे, किसे हम क्लासिकल पार्टिकल कहेंगे, तो इसमें क्या होगा कि फोर्स और का डायरेक्शन और मोशन सेम डायरेक्शन में होगा, ओके। तो यहां पे मास क्या होगा, यहां पे जो मास होगा वो इफेक्टिव मास लेंगे। हम लोग देखेंगे इफेक्टिव मास क्या होता है। ये जो मास है क्रिस्टल में है, उसमें इफेक्टिव मास कंसीडर करेंगे। इसका मतलब जो मास जब इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, इसका मास जो होगा वेव वेक्टर के थ्रू, वेव फंक्शन ऑफ वेव वेक्टर, इसका मास देखेंगे कि वैरी करता है, इसीलिए इसको इफेक्टिव मास देते हैं। पर यहाँ पे जो सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, इसका यहाँ पे मास क्या होगा, मास कांस्टेंट होगा, मास क्या होगा, मास कांस्टेंट होगा, ओके। बस हम लोगों को जो बेसिक समझ आपको समझ में आ गया होगा, क्या पार्टिकल्स, क्लासिकल पार्टिकल्स क्या है, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल क्या है, और हम क्यों जान रहे हैं इसे, ताकि जब हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं तो हम सारा जो फोर्स जो हम जान सकें, हम क्यों F बराबर ए में इसे लिख सकते हैं, तो कहां पे F बराबर ए में नहीं लिख सकते हैं। सेम चार्ज रहेगा, यदि क्रिस्टल में रहेगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, एटम में रहेगा तो फॉर्मूला अप्लाई हम नहीं करेंगे, तो कहां पे कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे जब हम फ्री चार्ज में रखेंगे तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ओके। हम इसे पार्टिकल्स की तरफ ट्रीट कर सकते हैं। अब पार्टिकल्स की तरह ट्रीट करने का मतलब क्या हो गया, हम लोग फोर्स जो न्यूटन लॉ के अनुसार जो हम लिखते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे F बराबर m है। हम कैनामेटिक्स इक्वेशन भी लिख सकते हैं, यदि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो कैनामेटिक्स इक्वेशंस भी हम लोग लिख सकते हैं, ओके। इस चैप्टर में बस यही है। F बराबर जो हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ के थ्रू हम F निकाल लेंगे, उसके बाद हमारा रेस्ट जो होगा सिंपल मैकेनिक्स की तरह होगा, ओके। जैसे कैनामेटिक्स इक्वेशंस में लिख सकते हैं V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS प्लस माइनस डिपेंडिंग अपॉन वेदर साइन ऑफ A, ओके। तो जब once you will able to find F, then rest will basic aptitude and basic numerical problems, ओके। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि हम जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं तो ये सब हम क्यों अप्लाई करते हैं, और सेम चार्ज कहां पे होगा
यदि ये हम देख चुके हैं कि कहाँ पे इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसका लाइट का इंट्रैक्शंस क्या होगा, और ये अलग अलग चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। जब हम मोरॉन फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम फोटोन नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे, तो देखेंगे वहां पे एटम में एनर्जी क्वांटिटाइज कैसा होता है। ओके, उसका हर चीज क्वांटिटाइज नहीं होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटिटाइज होगा, तो ये लोग हम बाद में पढ़ेंगे। हमारा मेन पर्पस है जानना कि हम इसे किस फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद थोड़ा सा बेसिक जानने के बाद थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कहाँ पे हम ये अप्लाई कर सकते हैं। बाकी तो 12th लेवल का है, बहुत सिंपल हो जाएगा इसके बाद। देखिए बेसिक, कुछ और बेसिक्स हम लोग जान लेते हैं, फंडामेंटल्स, बेसिक्स अबाउट चार्ज। जो हम लोग सभी लोग जानते हैं 9th-10th से, चार्ज होते हैं एनी, that is it is quantized, n का वैल्यू हो जाएगा, n का वैल्यू, दिस इज इलेक्ट्रॉन, n is equal to 1 2 3 4 5, not 1.1. okay, how can you create a charge? How can you create the charge? One, by mechanical rubbing, mechanical friction. आप रब कर सकते हैं, सभी लोगों को पता है रब करने से क्या होगा, चार्जिंग हो जाएगा। दिस इज चार्जिंग, एंड चार्जिंग इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे ये नहीं जानना है, मुझे बहुत कुछ अभी पढ़ना होगा। जो मेन जहां से इलेक्ट्रोस्टैट शुरू होगा, शायद नेक्स्ट क्लास से हम लोग इंटेंसिफाइड पढ़ेंगे, पर ये जो बेसिक्स जो मुझे लगता है बता देना चाहिए। एंड बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। ओके, one more thing, do you know about invariance of charge? Invariance of charge with motion. With ये चार्ज यहाँ पे ये स्टेशनरी है। ओके, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये एटम में है, एंड दिस इज न्यूक्लियस, और यहाँ पे ये रोटेट हो रहा होता है हाई स्पीड से। क्या चार्ज वेरी करता है? नहीं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होगा, और ये स्टेशनरी है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का मास सेम होगा। दिस इज मूविंग वेरी फास्ट। क्या फास्ट, कितना भी फास्ट मूव कर ले, इसका चार्ज पे कोई वैरी नहीं करता है। सो इनवेरियंस नेचर इट फॉलोज। और वो पता है चार्ज या स्केलर क्वांटिटी कूलम में मेजर करते हैं, ये लोग ये बताना बहुत मेरे ख्याल से बहुत जरूरी नहीं है। ओके, now see charging by conduction. Charging by conduction. Suppose we have one sphere uncharged, and this is handle. ये इंसुलेशन होगा, अदरवाइज चार्ज यहाँ पे रहेगा जो नीचे चला जाएगा। हम इसे पकड़ लेंगे, होल्ड करेंगे तो आपको बॉडी में चला जाएगा, इसीलिए हम इसे इंसुलेट कर देते हैं। हैंडल है जो इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। एंड दिस इज अनदर स्फीयर हैव चार्ज Q, its magnitude is Q, and here 0. Okay, what happens? आप जब इसे टच करते हैं
सपोज आप इसे टच कर दिए, यानी कंडक्शन का मतलब हो जाए टच करने पे क्या होगा। जब इसे टच करते हैं, क्यू चार्ज है, इस पे जीरो चार्ज है, दोनों पे चार्ज आ जाएगा, दोनों पे चार्ज आ जाएगा, ठीक है। पर ये कितना चार्ज आएगा हम लोग देखेंगे। नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज हमारे पास क्या था, वो जीरो प्लस क्यू था, क्यू आ गया। अब जो चार्ज यहाँ पे होगा ये होगा नेट चार्ज का हाफ। यहाँ पे चार्ज क्या होगा, क्यू बाई टू, यहाँ भी चार्ज होगा क्यू बाई टू। ओके, तो नेट चार्ज के आधा चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ओके, साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि साइज के अनुसार कितना होगा। ओके, देखेंगे कि पोटेंशियल कैसे डिसाइड करता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, पर अभी हम देखेंगे कि इसका शेप, इसका साइज कुछ भी हो, ये डिपेंडेंट नहीं हो रहा है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, पर दोनों का जो चार्ज होगा वो नेट चार्ज के आधा होगा। One more illustration. Considering both, हम लोग अभी एक एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसके थ्रू हम लोग कंडक्शन इंडक्शन भी स्टडी बोथ। सपोज ये हमारे पास ए एंड बी अनचार्ज मेटल स्फीयर्स है। ये क्या है, चार्ज मेटल स्फीयर। ओके, और इस स्टैंड है। You can understand why we insulate it, because charge will flow from this sphere, so you need to be insulated from the contact of anything, maybe conductor, maybe your hand. Okay, what happens when this is positively charged rod? This is positively charged rod. Okay, then what will happen? क्या होगा? ओके, देखते हैं। यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे निगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा। ओके, यदि हम इस रड को हटा देते हैं, इफ रड इज रिमूव्ड आफ्टर सम टाइम, व्हाट हैपेंस? इफ रड इज रिमूव्ड, क्या होगा? देन व्हाट हैपेंस? रड को जैसे ही हम रड को हटाएंगे, ये फोर्स था जो इसे बैक कर रहा था, और इससे जो फोर्स लगा रहा था, जो दूर भेज रहा था, इस मतलब इस चार्ज को सेपरेशन ला रहा था, चार्ज डेंसिटी को, चार्ज से जो हम देख रहे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो इस तरह से क्रिएट कर रहा था, वो फोर्स तो खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा? फिर से न्यूट्रलाइज होगा। इफ द रड इज रिमूव्ड, देन a sphere will be neutralized. क्या होगा? स्फीयर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब फिर से अनचार्ज हो जाएगा। ओके, तो क्या करते हैं? ओके, अनदर सिचुएशन, हम इसे अलग कर लेते हैं। इस पे निगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, हम इसे अलग कर लिए, और फील्ड यहां पे है ही। अब इसे हटा देते हैं। जब इस सोर्स को हम लोग हटा देंगे तो क्या होगा? we will get negative charge sphere and we will get positive charge sphere. In this way, we are with the help of induction. Induction means without contact. Okay, we will study what happens when material. You see, when material is placed in electric field, and this electric field is non-uniform. Okay, this electric field is non-uniform. Then what we are
seeing here that there is polarizations, charge separation, and just in coming section we will study all these things. What happens? How much force? Okay, and this is dipole. This is dipole. You can say this is a dipole. Two charges at a small distance. Okay, so we will elaborate this concept later in later sections. So this is the way we can get the charge on the body, one negative charge and one positive charge. And induced charges are same. This is, you can say that this is the induced charge. Induced charge. इसका ये साइज मान लो कि अलग अलग है, कुछ ज्यादा है कम है, क्या इस पे चार्ज अलग होगा, इस पे चार्ज अलग होगा? नहीं, ये पहले से ही इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज हमारे जानते हैं कि बैलेंस होगा, चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते हैं और चार्ज को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा, दोनों चार्ज बराबर होगा। दिस इज माइनस Q1, यदि माइनस Q1 बराबर पॉजिटिव Q2, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों पे बराबर होगा। अच्छा, शेप अलग हो सकता है, साइज भी अलग हो सकता है, पर चार्ज जो होगा दोनों पे बराबर होगा। ओके, दिस इज द फैक्ट्स। ये लोग हम, दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन हाउ टू चार्ज बॉडी with the help of electric field. Here we have introduced the two concepts, inductions and conduction. Now one more question. आप देख सकते हैं ये हमारा एक सोर्स है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे एक बॉल, एक टेनिस बॉल आप कह सकते हैं, एक टेनिस बॉल है, is your tennis ball. Okay, और इसे हम पेंट कर सकते हैं, यहाँ पे पेंट कर दिए। दिस इज कंडक्टिंग पेंट, कंडक्टिंग पेंट है, और इसे हम सिल्क थ्रेड से, दिस इज सिल्क थ्रेड हैंग किया हुआ है। देन गिव इट अ स्मॉल पुश। ओके, जस्ट इसे पुश करते हैं, देन व्हाट विल हैपन, ये फिर से इधर पोलराइज हो जाएगा, इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे ही हम पोलराइज करेंगे इधर शिफ्ट कर जाएगा, इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अट्रैक्शन फोर्स होगा। अट्रैक्शन फोर्स के बाद क्या होगा, जैसे ही इससे कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही टच करेगा इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा, रिपल्शन, ये हैंग है, जैसे ही रिपल्सन होगा फिर क्या होगा, रिपल्सन के कारण यहां फिर आके इस पे टच करेगा, यहाँ पे फिर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, फिर इस पे रिपेल करेगा, फिर इसको रिपेल करेगा, देन इट विल ऑक्सीलेटिंग। सो क्या होगा, रिजल्ट्स विल बी ऑक्सीलेशन। ओके, नेक्स्ट चैप्टर, in next classes we will study Coulomb's law. This was the basic. Okay, thank you.